ধন্যবাদ পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আপোনালোকে সকলোৱে যাৰ কাৰণে ইমান আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছিল আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছেহি। এতিয়া আমি প্ৰথমে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক আমি সম্বৰ্ধনা জনাব খুজিছোঁ আৰু মই প্ৰথমে সকলো গহপুৰবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ হৈ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া আমাৰ বাপতি সাহোন এখনি গামোচাৰে তেখেতক আদৰণি জনাবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমাৰ গোটেই ব্লক কংগ্ৰেছ, ব্লক মহিলা কংগ্ৰেছ, ব্লক ইউথ কংগ্ৰেছ, ব্লক NSUI, ব্লক খেলাদল, ব্লক ইয়ং ব্ৰিগেড সকলোৱে মিলি এটা জাপিৰে আমি ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াক সম্বৰ্ধনা জনাম আৰু গহপুৰৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি এই জাতিৰ তলত পৰম শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ প্ৰিয় কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসমৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া, নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া সম্পাদক, প্ৰদ্যোৎ বৰদলৈ, বিকাশ উপাধ্যায়, শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱা, বিশ্বনাথ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি দিলীপ বৰুৱা, শোণিতপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি পৰমা কাকতি আৰু আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ আৰু গহপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আইসকল, যুৱক যুৱতীসকল, মই প্ৰথমে আদৰণি ভাষণ দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এই আদৰণি ভাষণত মই সৰ্বপ্ৰথমে গহপুৰবাসী ৰাইজৰ হৈ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ হৈ আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া উষ্ম আদৰণি জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আজি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি এই বিশাল গণসমাৱেশেৰে আমাৰ আজি এই সভা সফল কৰি তুলিছে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে গহপুৰ এক ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা ইতিহাসত গহপুৰৰ নাম সদায় সোণালী আখৰেৰে জিলিকি আছে যে এই গহপুৰৰে যুৱতী 16 বছৰীয়া যুৱতী কনকলতা বৰুৱা আৰু ডেকা যুৱক মুকুন্দ কাকতিয়ে 1942 চনৰ ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ 20 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে
গহপুৰ থানাত ব্ৰিটিছৰ পতাকা নমাই তিৰংগা পতাকা উৰুৱাবলৈ আহি ব্ৰিটিছ পুলিচৰ গুলীত প্ৰাণ আহুতি দিছিল। সেই দেশপ্ৰেমৰ ইতিহাস গহপুৰত বিজড়িত হৈ আছে আৰু আমি সকলো আজি সেই কনকলতা সেই মুকুন্দ কাকতিৰ আদৰ্শৰে আমি সকলো আজি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আমাৰ সকলোৰে গাত কনকলতাৰ তেজ আছে, মুকুন্দ কাকতিৰ তেজ আছে আৰু সেইকাৰণে আজি গহপুৰত কংগ্ৰেছী কৰ্মীয়ে আজি অংগীকাৰ লৈছে যে এই যি বিজেপি, যি RSS, যাৰ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত কোনো অৱদান নাই, আজি সেইসকলে কংগ্ৰেছে 70 বছৰ দেশত একো নাই কৰা বুলি কৈ আজি যি অপপ্ৰচাৰ চলাই আজি আমাৰ দেশত, আজি আমাৰ গহপুৰত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যি বিভাজন আনিছে, যি বৈষম্য আনিছে, আজি তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আমাৰ গহপুৰবাসী ৰাইজ আজি কনকলতা আৰু মুকুন্দ কাকতিৰ আদৰ্শৰে আমি আজি একত্ৰিত হৈছোঁ। আমাৰ এটা মই আদৰণি ভাষণত বেছি দীঘলীয়া নকওঁ। আপোনালোকে সকলোৱে আমাৰ প্ৰিয় নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ ভাষণ শুনিবলৈ আহিছে। মাত্ৰ মই এটাই নিবেদন জনাম যে আজি সমগ্ৰ দেশত আৰু আমাৰ অসমত আৰু গহপুৰত এই বিজেপিৰ আৰু বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ যি অপশাসন, এই অপশাসনে মূল্য বৃদ্ধি, আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধিয়ে, তেওঁলোকৰ উগ্ৰ সাম্প্ৰদায়িক নীতিয়ে আৰু অসম বিৰোধী, অসমৰ জাতি মাটি ভেটিৰ কথা কোৱা এই দলে আজি অসমৰ জাতি মাটি ভেটি কা আইন আনি যেনেদৰে আজি বিনষ্ট কৰি তুলিছে, মূল্য বৃদ্ধিয়ে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ জীৱন যেনেকৈ দুৰ্বিষহ কৰি তুলিছে, নিবনুৱা সমস্যাই আমাৰ যুৱ সমাজক যেনেকৈ পংগু কৰি তুলিছে আৰু উন্নয়নৰ নামত এটা ডাঙৰ শূন্যৰে যেনেকৈ আমাক চাৰিওফালে আজি বিনষ্ট অৱস্থালৈ লৈ গৈছে আৰু বিভিন্ন চৰকাৰী আঁচনিৰ নামত যি স্বজন তুফান, যি দৰিদ্ৰ ৰাইজক যি তেওঁলোকে চাৰিওপিনৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে, আজি এই গোটেইবিলাকৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবৰ কাৰণে আৰু এই গোটেইবিলাক অৱসান ঘটাবৰ কাৰণে আমাৰ হাতত এটাই সোণালী সুযোগ আহি পৰিছে। সেইটো হৈছে অহা 27 মাৰ্চ তাৰিখে যি বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন হ'ব। এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকে আমাৰ দৰিদ্ৰ ৰাইজক গহপুৰত আজি বানপানীয়ে গহপুৰ আজি বিধ্বস্ত কৰিছে, আজি গৰাখহনীয়াই গহপুৰ বিধ্বস্ত কৰিছে, আজি বড়ো ৰাইজৰ মাটিৰ পট্টা বন্ধ কৰি ৰাখিছে, মিচিং ৰাইজৰ মাটিৰ পট্টা বন্ধ কৰি ৰাখিছে, আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা মিচিং অধ্যুষিত এলেকাৰ আজি উন্নয়ন স্তব্ধ কৰি তুলিছে, আজি হস্পিটেলৰ অৱস্থা নাই, স্কুলৰ অৱস্থা নাই। এই গোটেই বিধ্বস্ত অৱস্থাৰ পৰা গহপুৰত পুনৰ নতুন ৰূপত সজাব পাৰিব একমাত্ৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছে পাৰিব। আৰু আমাৰ যি কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ হ'ব, আমাৰ মহাজোঁটৰ অধীনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত যি চৰকাৰ হ'ব, এই চৰকাৰে আমাৰ গহপুৰ আমি নতুনকৈ গঢ়িম, গহপুৰ আমি নতুনকৈ সজাম আৰু আমি পুনৰ এই বিজেপিৰ অপশাসন দূৰ কৰি গহপুৰলৈ শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সমৃদ্ধি ঘূৰাই আনিম। মই এই দুআষাৰ কৈ মই আপোনালোকৰ সকলোকে অভিনন্দন জনাই মই আদৰণি ভাষণ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি আৰু মোৰ অগ্ৰজ মোৰ নেতা শ্ৰী ৰিপুণ বৰাদেৱক আশীৰ্বাদ জনাবলৈ আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছে, যাতে তেখেতক আপোনালোকে কংগ্ৰেছ দলে সদায় যুগে যুগে অসম আৰু অসমীয়াৰ পক্ষত সদায় থিয় দি আহিছে।
যেতিয়া অসম আৰু অসমৰ মানুহৰ বিপদ হয় তেতিয়া কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বই অসম আৰু অসমীয়াৰ পক্ষত থিয় দিয়ে। ৰাইজ, মই মনত পেলাই দিব খুজিছো, দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আগে আগে ব্ৰিটিছে যেতিয়া ভাৰতবৰ্ষ এৰি যোৱাৰ কথা পাঙিলে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰ কৰিছিলে অসমখনক পাকিস্তানৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ। কিন্তু তেতিয়াও অসমৰ কংগ্ৰেছ দলে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যই জাঙুৰ খাই উঠিলে আৰু এটা ভয়ংকৰ ভাৱে সিংহৰ দৰে গৰজি উঠিল। ব্ৰিটিছে তেওঁলোকৰ অসমৰ প্ৰতি কৰা অবিচাৰক ষড়যন্ত্ৰৰ সেই ষড়যন্ত্ৰ তেওঁলোকে বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। আজি এই ব্ৰিটিছৰ সলনি দিল্লীত থকা যিখন বিজেপি দলৰ চৰকাৰ আছে তেওঁলোকে অতি অন্যায়ভাৱে অসমৰ ওপৰত অসমীয়াত্বৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে। কিন্তু ৰাইজ, আপোনালোকে জানে কেনেকৈ কংগ্ৰেছ দলে কংগ্ৰেছৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধীয়ে আজি অসমীয়া ৰাইজৰ পক্ষত আহি থিয় দিছে আৰু কৈছে যে আইন আমি নামানিম, এই আইন আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰে কেতিয়াও প্ৰযোজ্য হবলৈ ৰাইজ, অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান, অসমীয়াৰ পৰিচয়, অস্তিত্ব আমি সদায় ৰক্ষা কৰিম। আৰু যে অসমীয়া বুলি কৈছো, অসমীয়া মানে চাউলুং চুকাফাদেউ, গুৰুজনা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ সেইসকলে যিটো অসমীয়াত্বৰ পৰিচয় তেওঁলোকে তিল তিলকৈ গঢ়ি তুলিছিলে। ইয়াত সকলো ভাষা ভাষী ধৰ্ম জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ আছে আৰু এই মানুহখিনিক ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে কংগ্ৰেছে সদায় কাম কৰি যাব। সেইভাবে আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ পূৰ্বৰ সভাপতি আমাৰ নেতা শ্ৰী ৰাহুল গান্ধীক আদৰণি জনাই আপোনালোক সকলোকে এজাৰি হাত চাপৰি বজাই তেওঁক আদৰণি জনাবলৈ মই আহ্বান ধন্যবাদ। এতিয়া আমি অনুৰোধ কৰিছো আমাৰ নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক অসমৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াক আপোনালোকক সম্বোধন কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ কৰিছো। आप सब मेरे साथ नारा लगाएंगे, जय आए असम, जय आए असम, जय आए असम। मंच पर विराजमान सम्माननीय श्री राहुल गांधी जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री रिपुन बोरा साहब, कैंपेन कमेटी के चेयरमैन और लोकसभा सांसद श्री प्रद्युत जी बोरदोलाई साहब, मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेतागण विराजमान हैं, तन भरत राय साहब, रिजन शर्मा साहब, दुर्लभ सोमिया जी विराजमान, जिला अध्यक्ष विश्वनाथ, जिला अध्यक्ष सोनीतपुर। मंच पर हमारे सभी अनेक मेहमान विराजमान हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल के सभी साथीगण, मेरे बुजुर्गों, माता भाइयों और प्यारे बच्चों, आप 27 तारीख को एक बहुत अहम फैसला करने वाले हैं। 27 तारीख को आसाम की क्या तकदीर रहेगी, इसका आप फैसला करने वाले हैं। आपका जो एक एक वोट है वो आसाम का भविष्य तय करेगा, वो इन छोटे महिलाओं का भविष्य तय करेगा, वो इन नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं उनका भविष्य तय करेगा, ये वो बुजुर्ग जो वहां विराजमान है उनका भविष्य तय करेगा। तो आपका वोट बहुत सोच समझ के आप डालें।
ये चुनाव कोई कांग्रेस पार्टी है कौन मंत्री बने, कौन मुख्यमंत्री बने, कौन एमएलए बने, उनका चुनाव नहीं है। ये चुनाव है आसाम को बचाने का चुनाव, ऐसे लोगों से बचाने का है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, बिरादरी के नाम पर हमें तोड़ना चाहते हैं। पिछले 5 साल में आपने देख लिया भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, इसने 5 साल में क्या काम किया। मैं पहले भी आपको पिछली मीटिंग में भी आपके निवेदन करके गया था, राहुल जी मुझे आज तक यह नहीं मालूम पड़ा है, मुझे यहाँ 4 महीने 5 महीने हो गए, मुझे आज तक नहीं मालूम है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है। प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं मुझे मालूम कौन है। एक तो चीफ मिनिस्टर है जिसने शपथ ली है, और दूसरा है जो उससे भी ऊपर ऊपर बनकर रिमोट कंट्रोल से और सुपर चीफ मिनिस्टर चलाता है, और इन सबों का रिमोट कंट्रोल दिल्ली में जो 2 बड़े नेता हैं वो बटन दबाते रहते हैं, और जाति बेटी बेटी के नाम से जो आपसे वोट लेके गए थे वो आपकी जमीनों को बेच रहे हैं, वो हमारी संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं। तो ये मौका है मेरे भाइयों और बहनों, 27 तारीख को आपको कांग्रेस को और माननीय रिपुन बोरा जी को कि बटन पर वोट दबाकर कांग्रेस को और महाजोट को विजय बनाएं। रिपुन बोरा साहब से मुझे काम करते हुए एक बहुत आनंद आता है। इनका जैसे मेहनती प्रदेश अध्यक्ष मैंने पूरे देश के अंदर नहीं देखा। रात और दिन मेहनत करके, रात को इनको देखो तो तिनसुकिया बैठे हैं, शाम को देखो तो धुबरी पहुंच जाते हैं। तो ऐसे एक नेता आपके बीच में आया है, आपकी जिम्मेदारी है उस नेता का कद बढ़ाने के लिए, आपकी जिम्मेदारी है, आप सबों की जिम्मेदारी है कि आपके बीच में जो नेता है उसको बहुमत से आप जिताएंगे। यही आग्रह के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद धन्यवाद दीपेंद्र सिंह डांगरिया। এতিয়া পৰম শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আপোনালোকে ইমান পৰে যাৰ ভাষণ শুনিবলৈ ৰখি আছে, আমি তেখেতক এতিয়া ভাষণ আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ কৰিম। তেখেত হৈছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি আৰু আমাৰ সকলোৰে প্ৰেৰণাৰ প্ৰতীক যুৱ নেতা ৰাহুল গান্ধী। ৰাহুল গান্ধী, ৰাহুল গান্ধী। এতিয়া ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াই ভাষণ প্ৰদান কৰিব। जितेंद्र सिंह, रिपुन बोरा जी, प्रद्युत बोरदोलोई जी, कनका राय जी, दुर्लभ समूह जी, दिलीप बरुआ जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। जो भी जितेंद्र जी ने रिपुन बोरा जी के बारे में बोला उसको मैं दोहराना चाहता हूं। ये आज तक कर रहे हैं उससे ज्यादा मेहनत से वो विधानसभा में आपके लिए काम करेंगे, पूरा दम लगा के काम करेंगे और असम को एक नए रास्ते पर ले जाने का काम भी करेंगे। देश में अलग अलग प्रदेश, और मैं इन सब प्रदेशों में गया हूं, घूमा हूं,
लोगों से बातचीत की है, उनकी समस्याओं को समझता हूं। असम वो प्रदेश है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान का सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे यूनिक प्रदेश है। इस प्रदेश में अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग सोच है, अलग धर्म है, आदिवासी है, मगर असम का मतलब कि सब एक साथ मिलकर भाईचारे के साथ एक दूसरे का आदर करके इस प्रदेश में रहते हैं। आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री। शंकर देव जी ने, बाकी आपके जो नेता रहे हैं, आइडल्स रहे हैं, उन्होंने आपको सिखाया और आज ये देश को सिखाते हैं, आप देश को सिखाते हैं। 5 साल पहले यहां बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने आसाम पर आपकी भाषा, आपकी हिस्ट्री, आपके कल्चर, आपके सोचने के तरीके पर आक्रमण शुरू किया। अलग अलग उदाहरण है, शायद सबसे बड़ा उदाहरण का या सीएए, जो आपकी असमियत पर आक्रमण, आपके वे ऑफ लाइफ पर, आपके जीने के तरीके पर आक्रमण। ये सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसे बहुत हैं। आपको बांटने का काम करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं, क्रोध फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे करते हैं और फिर चुनाव के समय आ जाते हैं और आपसे कहते हैं हमें वोट। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पिछले 5 सालों में बीजेपी की सरकार ने असम के लिए क्या किया? मुझे बता दो, कोई योजना बता दो। उन्होंने सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है, असम पर आक्रमण किया। आपसे कहा था, चाय गार्डन के जो मजदूर हैं उनसे कहा था कि हम आपको 351 रुपीज देंगे। दिया? मिल गया आपको? मिल गया? मिल गया। कितना मिलता है? 177। आप 177 बोल रहे हो, दूसरी जगह मुझे बोला 167, 170। अब आप बताइए, 21वीं सदी में चाय के मजदूर को 167 रुपीज से क्या मिलेगा? क्या कर सकता है वो? 167 रुपीज से क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा दे सकता है? अगर कोई उसके परिवार में बीमार होता है, 167 से उसका इलाज हो जाता है क्या? आज के हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। चाय मजदूर को 167 देते हैं और जो आपका है, गुवाहाटी में आपका एयरपोर्ट है, मोटेलाई एयरपोर्ट, उसमें आपके लिए 2000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए, असम को दिए। उस एयरपोर्ट को उठा के अदानी जी को पकड़ा दिया। मैं उदाहरण दे रहा हूं, इधर 167, उधर हजारों करोड़ रुपए, एक बार नहीं
अब जब भी असम में कोई हवाई जहाज आएगा, कोई हवाई जहाज में दिल्ली जाएगा, बंबई जाएगा, तो असम से पैसा निकलेगा और अदानी जी की जेब में जाएगा। 1 साल के लिए नहीं, 10 के लिए नहीं, 15 के लिए नहीं, 30, 40, 50 साल के लिए। और यहां पे 167। तो हमारी पहली गारंटी 167 नहीं, 365 रुपया हम आपको देंगे। और मैं तो कहता हूं, चाय मजदूरों से कहता हूं, हम 365 देंगे, मगर मैं जानता हूं कि यह भी आपके लिए कम है, मगर यह गारंटी करके हम आपको दे देंगे। और मैं यहां खोखले वादे करने नहीं आया हूं। आप जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, पंजाब जाइए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उधर जाके पूछिए, चुनाव में राहुल गांधी आया था, क्या वायदा किया था? मैंने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। छत्तीसगढ़ में मैंने कहा 2000 रुपए किसान को धान के लिए मिलेगा। पंजाब में कहा किसान का कर्जा माफ होगा। राजस्थान में कहा किसान का कर्जा माफ होगा। जाके पूछ लीजिए। और आपको याद होगा, मनरेगा का वायदा किया, मनरेगा लागू किया। किसानों को हमने, यूपीए की सरकार थी, 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करके दिया। तो ये खोखले शब्द नहीं, ये मेरा रिकॉर्ड है। जो मैं कहता हूं वो करके दिखा देता हूं। और मैं गारंटी कर रहा हूं, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, यहां पे 365 मजदूरों को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, 365 होगा। दूसरी बात, जो आप पे आक्रमण हुआ, उसको आप कहां बोलो, उसको आप सीएए बोलो, जो भी उसको आप बोलना चाहते हो बोलो, मगर उसको आसाम से मिटा के हम फेंक देंगे। और सिर्फ आसाम में नहीं, याद रखिए, पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया है। लोकसभा में, विधानसभा में, राज्यसभा में हमने इसका विरोध किया है और इसको हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ने देंगे। का यहां पे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आसाम की जनता पर, आसाम के इतिहास पर, आसाम के भविष्य पर यह आक्रमण है और हम यह आक्रमण नहीं होने देंगे। तीसरी गारंटी, 200 यूनिट बिजली के हर परिवार को हम मुफ्त में देंगे। थैंक यू मत बोलिए, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है, यह आपका हक है। थैंक यू जब बोला जाता है, जब आपका हक नहीं होता, आपको कुछ मिल जाता है। यह आपका हक है, कोई थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं, यह हमारा काम है। यह जो मैं आपको बता रहा हूं, यह आपको 5 साल पहले मिल जाना चाहिए था, नहीं मिला, इसलिए थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं दूंगा, असम की कांग्रेस पार्टी देगी और आप लोगे। चौथी गारंटी, 2000 रुपए प्रधानमंत्री कहता है मेक इन इंडिया, और फिर प्रधानमंत्री फोन इस्तेमाल करते हैं, उस पर लिखा है मेड इन चाइना। ये क्यों हुआ? क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो हिंदुस्तान की रोजगार बनाने की रीढ़ की हड्डी है, उसको तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके। आपसे उन्होंने कहा 500 रुपए, 1000 रुपए का नोट रद्द कर रहा हूं।
आपको याद है ना? उन्होंने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है। आप खड़ी थी लाइन में, बैंक में गई, आप खड़ी हुई ना, आपने अपना पैसा डाला बैंक में, काला धन खत्म हो गया? वो आपका सारा का सारा पैसा निकालकर नरेंद्र मोदी ने हमारे दो के जेब में डाल दिया। उसके बाद जीएसटी लागू करते हैं, 5 अलग अलग टैक्स, 28% टैक्स, गरीबों पर टैक्स, सब छोटे बिजनेस, दुकानें, मिडिल साइज बिजनेस जो रोजगार पैदा करते हैं, सब के सब खत्म हो गए। आप किसी भी दुकान में चले जाइए, उससे पूछिए नोटबंदी से फायदा हुआ, जीएसटी से फायदा हुआ, वो आपको कहेंगे नहीं, बिल्कुल फायदा नहीं हुआ। देखिए, मैं पूछता हूं आपसे, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? इस भीड़ में जीएसटी से किसी को फायदा हुआ? आप जानते हो किसको फायदा हुआ? सही बोला। दूसरे नंबर पे किसको हुआ? अंबानी को हुआ, अदानी को हुआ, बीजेपी के नेताओं को हुआ, आसाम की जनता को नहीं हुआ। और जो पहले रोजगार मिलता था खत्म हो गया, गायब हो गया। और आज आसाम का युवा चारों ओर घूमता है, रोजगार ढूंढता है, मगर उसको आसाम में रोजगार नहीं मिलता, बाकी प्रदेशों में भी नहीं मिलता। सरकारी वैकेंसी पड़ी है, हजारों सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, मगर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग उनको नहीं भरते। आपका एयरपोर्ट ले जाएंगे, आपके टी गार्डन उठा के ले जाएंगे, मगर सरकारी नौकरी आपको नहीं देंगे। तुम्हारा पहला काम उन सरकारी नौकरियों को भरने का होगा। दूसरा काम जो प्राइवेट बिजनेसेस है, प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसकी मदद करने का होगा, उनको इंसेंटिव्स देने का होगा, और आसाम में एक बार फिर रोजगार पैदा करने का काम होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने गैस सिलेंडर दे दिया, हर भाषण में कहते थे मैंने गैस सिलेंडर दे दिया। भाइयों, कांग्रेस के समय, यूपीए के समय, बहनों, गैस सिलेंडर का क्या दाम था? कितना था? 400 था। आज कितना है? 1000 हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने गैस के दाम कम कर दिए। ये लगा इनका आंकड़ा, रेट डबल कर दिया। आपसे कहते हैं कि गैस पहुंचा दी, दाम कम कर दिया। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? मजेदार बात आपको बताता हूं, यूपीए के समय इंटरनेशनल मार्केट पे $140 तेल का दाम था। आज इंटरनेशनल मार्केट पे तेल का दाम बिल्कुल कम हो गया, मगर हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, 100 रुपए तक पहुंच रहा है। ये किसकी जेब में जा रहा है? ये असम की जनता को मिल रहा है क्या पैसा? कहां जा रहा है ये? हर रोज आप पेट्रोल भरते हो, डीजल भरते हो, आपके जेब में से पैसा निकल रहा है, ये जा कहां रहा है? आपकी शिक्षा में जा रहा है? नहीं। स्वास्थ्य में जा रहा है? नहीं। तो कहां जा रहा है? हम दो, हमारे दो, पूरा का पूरा काम हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2, 3, 4 अरबपतियों के लिए करते हैं, जो इनके मित्र हैं। अच्छा, आप उद्योगपति हो, इनके मित्र नहीं हो तो आपका काम नहीं हो सकता। अगर आप इनके मित्र हो, वो 3-4 मित्र हैं मोदी जी के, और नहीं, ज्यादा दोस्त नहीं है उनके, उनका पूरा का पूरा काम होता है। मीडिया में 24 घंटे वो आपको दिखेंगे, जहां भी देखो नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखेगा। क्या ये फ्री में होता है क्या?
में अपना अपना चेहरा कोई टीवी में डाल सकता है? फ्री में? आपको लगता है क्या मुफ्त में जाके आप अपना चेहरा लगा दोगे टीवी पे? क्या नहीं भाइयों बहनों, पैसा लगता है, लाखों रुपए लगते हैं। तो सीधी सी बात है, नरेंद्र मोदी इन 3-4 लोगों के लिए काम करते हैं। ये 3-4 लोग नरेंद्र मोदी जी का चेहरा टीवी में डालते हैं और नरेंद्र मोदी जी, सोनेवाल जी जो आपका है उनको पकड़ा देते हैं। सीधा सौदा है, सिंपल डील है, इसमें कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है समझने। तो इसको रोकना है और असम में आपकी सरकार बनानी है, चाहे मजदूरों की, किसानों की, छोटे दुकानदारों की, युवाओं की, आसाम की सरकार बनानी है। और ये हम करने जा रहे हैं। इसलिए मैं यहां आया हूं कि आप रिपुन बोरा जी को चुनाव जिताइए, इनको विधानसभा में भेजिए, ये आपके लिए काम करेंगे और असम में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी जो असम की हिस्ट्री को, इतिहास को, भाषा को, भविष्य को बचा के तेजी से विकास लाएगी। मैं जानता हूं यहां पे आपकी एक समस्या है, आपकी पुल की समस्या है। गोपुर बोकाहाट का जो पुल है, यूपीए की सरकार थी, हमने वायदा किया था जैसे हमारी असम में सरकार बनेगी ये हम पुल आपका बनवा के आपको दे देंगे, आपके हवाले कर देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। ধন্যবাদ। তো এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত